ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਬਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢਾਲਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਸਨ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਾਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
जो कथा कर लगा मेरे अंदर ख्याल आया, ये कोई माड़ी बात तो नहीं गुरु को बार बार धन धन कहना, क्योंकि गुरु का जीवन है धनता दे जो। पर सारी उम्र क्या धन धन कहने के नाल ही साडा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा? एक सवाल है। सारी उम्र गुरु ने धन धन क्या साडे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा? जद तक साडे तुहाडे अंदर सवाल नहीं उठता, उदों तक जीवन च परिवर्तन नहीं आ सकता। मेरे अंदर ख्याल आया, असल विच गुरु नूं धन धन कहंदिआं एक अरदास करनी सी, मालका मेरा जीवन कदों धनता दे योग होएगा। असल विच ये गल सी, गुरु नूं धन आखो भावें ना आखो, गुरु नूं कोई फर्क नहीं पैना जी। मेरे गुरु पातशाह दे पावन बचन रोज़ पढ़दे हो, मारे कहंदे जे सब मिल के आखन भाए बड़ा ना होवे, सुखाला बचन नाल हाजरी भरिया करो। मेरी एक आदत है, मैं कला कथा करके ना जाऊँ, तुसीं भी नाल हाजरी भरो। जे सब मिल के आखन भाए बड़ा ना होवे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैना। असल विच मायने ये रखता कि असी धन धन कहंदिआं कदों धनता दे योग होवांगे। मायने तो यह रखता सास, समा नहीं है, पर मैं कह दिता धन गुरु हरगोबिंद पातशाह के जीवन से एक पंछी झात मारनी सास, क्योंकि गुरु पातशाह के जीवन साढ़े वर्गा नहीं। शुरुआत गल की सी, जिन्नी बार मर्जी पढ़ो तुहानूं हर बार नवीं तो नवीं सिक्ख्या प्राप्त होएगी सास। फिर एक शब्द की टेक लै लैनी चाहिए। एक शब्द आपां कीर्तनी सिंघां तो बार बार सरवण करते हैं जी, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए। मैं कहना शब्द ही विचार करो, इन्नी क विचार करते जाओ शामा पै जान सास। ये शब्द सानू बहुत गहराई विच जाण वास्ते मजबूर कर देंदे, बुलारा नहीं विचार करता, असल विच शब्द मजबूर कर दिंदा गहराई विच जाण वास्ते सास। जदों कोई प्यार नाल शब्द नूं पढ़दा, जे उपर उपर पढ़ांगे गल बननी कोई नहीं। उन इस पंक्ति के उपर उपर अर्थ करांगे तो साडियां नज़रां ने यही वेखना करामाती कि जिस जगह ते गुरु आके बैठ गया, पता नहीं उत्थे बनस्पति विच हरियावल आ गई। जे उपर उपर अर्थ करांगे सास, पर नहीं, ये तो करामात हो जाएगी ना। मेरे गुरु पातशाह कहते ना, जिस धरती ते मेरा गुरु आके बैठ गया, बारी तौर पर भी अर्थ लै लो, उत्थे हरियावल किहड़ी आंदी है? नुकता ध्यान नाल नोट करते जाए। पहली हरियावल जिथे मेरा गुरु आके बैठता, उत्थे ये सत संगत रूपी हरियावल आ जाती सास। उत्थे रौनकां लग जांदियां। एक बचन आंदा जी रब्बी बाणी चो, अपने कोल कोई गल नहीं कहांगा, मर कहते जै सतगुर तैं सत संगत बनाई। जिथे सतगुर आके विराजमान हो गया, उत्थे संगतां दीयां रौनकां लग गईयां। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। हुण दूसरे अंतरीव अर्थ लै लिओ, जिस हिरदे रूपी धरती ते मेरा गुरु आके बह गया ना, उस हिरदे विच भी हरियावल आ जाती है, उस हिरदे विच भी रौनकां आ जांदियां। एक गुरपुरब मनाउण दा केवल मकसद ही यह है किते सुक्के मन च किते हरियावल आ जाए सास। केवल फार्मैलिटी तौर पर नहीं आए तो हाजरी भर के चले जाना। प्रबंधकों ने नहीं दौड़ भज की होंगी, इन्नी मेहनत की होंगी है, मजा तां है जे उस तों आपां कोई लाभ उठाइए सास। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए, वो धरती केड़ी है? ढाडी वीरां ने जिक्र किया, वो धरती गुरु की वडाली। जिस धरती के भाग जागे मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह का जिथे आगमन होया। अगली पंक्ति, से जंत पे हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए। वो जीव धनता दे योग हो गए, जिन्हां जीवां ने जाके गुरु हरगोबिंद पातशाह का दीदार किया। फिर सवाल उठना, क्या वही लोग धनता दे योग होए? क्या असी धनता दे योग नहीं हो सकते? असी जिन्ने भी गुरु की हजूरी च आके विराजे हाँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गोद च बैठे हैं, ईमानदारी नाल आखियो साध संगत, जितनी सुरती बिरती जोड़ के तुसी गुरु पातशाह का जीवन सुनोगे, समझ लेना कि असी सुनदियां गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर्शन कर रहे हैं साथ। तुसी भी धनता दे योग हो गए हो, तुसी भी भागां वाले हो गए हो जिहड़े गुरु कोल आके गुरु दीयां बातां सरवण करदे पे हो सी। से जंत पे हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए। अगली पंक्ति ते विचार करना चाहता, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। कुल तो शुरुआत करांगे। वो कुल केड़ी सास? सोढ़ी श्रेष्ठ सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली वडाई। कुल है सोढ़ी। धन धन रामदास गुर सासन जिन सरियाते ने सवारिया बचन आख्या सो। गुरु रामदास महाराज के गृह विखे 3 सपुत्र, केवल पंछी चात समय च समाप्ति करांगा साथ। 3 सपुत्रां दा जन्म होंदा। कोशिश करियो सिंपल जे तरीके नाल गल करांगा, इन्ना क इतिहास तुहानूं सारिआं नूं याद होना चाहिए।
गुरपुर मनाने का मैं कहना स्वाद आ जाए सास। धन गुरु रामदास महाराज के गृह विखे 3 सुपुत्रां का जन्म होंदा। सब तो पहला 1557 च बाबा प्रथी चंद का, दूसरे नंबर ते 1560 विच बाबा महादेव का, ते तीसरे नंबर ते धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का 15 अप्रैल 1563 नूं प्रकाश होंदा गुरु अर्जन देव पातशाह। सासंग च गल करिए गुरु अर्जन देव पातशाह की, बड़े ध्यान नाल सासंग नुकते नोट करने वाले जे गल करिए गुरु अर्जन देव पातशाह की तो हर बुलारे की जबान से एक पंक्ति बदो बदी आ जाती। जो गुरु अर्जन देव पातशाह की सिफत करिए भट्टां दे सबैयां विचों एक पंक्ति हर बुलारे की जबान से आती, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। ये गुरु अर्जन देव पातशाह तेरी मैं की सिफत करा, तू तो जन्म तो गुरमत नूं पछाण लिया सी, तू जन्म तो गुरमत का धनी सी। हुण इत्थे रुक के एक विचार करना चाहना सास, की गुरमत नूं पछाणिया। हालांकि बाल अवस्था तो तुहानूं पता जिंदगी के पहले 18 साल गुरु अर्जन देव पातशाह ने 11 साल नाना गुरु की गोद का निग मानिया, अगले 7 साल गुरु रामदास महाराज की गोद का निग मानिया। इत्थे एक नक्शा तुहाडे सामने रखना चाहना, पूरी सुरती बिरती जोड़ के सुनियो सास। गुरु अर्जन देव पातशाह ने 18 साल के अंदर गुरु नूं उपदेश करदिआं वेखिया। किते ध्यान विच गल आई होवे सास, फिर दोबारा बेनती कर लगा, ध्यान न सुनने वाली गल। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने 18 साल के जीवन काल अंदर पहले 18 साल गुरु नूं उपदेश करदिआं वेखिया। गुरु किहो जिहा होना चाहिए, गुरु असल विच है की है, इन्हां अखां ने गुरु अर्जन देव पातशाह ने वेखिया। उस तो बाद केवल गुरु नूं नहीं वेखिया, इन्हां 18 सालां दे अंदर एक सिख नूं गुरु दे उपदेश कमांदिआं वेखिया। तुहाडे अंदर सवाल पैदा होया ना, वो कौन ने? नाना गुरु अमरदास नूं गुरता गद्दी ते बैठ के तख्त ते बैठ के उपदेश करदिआं वेखिया, ते पिता गुरु रामदास महाराज नूं सिख बन के उपदेश कमांदिआं वेखिया। इसे करके गुरु अर्जन देव पातशाह दोवें गुण महान गुण आ गए, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। जिन्हां दे ना गल पकड़ च आई होवे दोबारा बेनती करदा, जिंदगी के पहले 18 साल विच ही गुरु वेखिया गुरु किहो जिहा होना चाहिए। किनू गुरु देखिया? गुरु अमरदास महाराज। जीवन के 7 साल विच पिता गुरु रामदास महाराज नूं सिख बन के गुरु के उपदेश कमांदिआं वेखिया सास। 18 साल के अंदर बहुत कुछ वापरिया, बहुत बड़ा इतिहास है, पर एक पंछी चात सास। 18 साल के अंदर बाबा प्रथी चंद ने रज के ईर्खा कमाई, कोशिश की किते गुरता गद्दी प्राप्त हो जाए, पर नहीं, वो बख्शिश का पात्र नहीं बनया। 18 साल की उम्र च 1581 विच गुरु अर्जन देव पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान हो जाते सासन। गौर करो, गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदिआं धन गुरु अर्जन देव पातशाह पर प्रथी चंद ने ईर्खा नहीं छड्डी। इत्थों तक सुलभी खां सुली खां नूं चढ़ा के लैके आया फौजां समेत, पर कोई उहदी पेश ना गई, उहदा कोई चारा ना चलिया सा। अखीर नूं फिर अंदर ही अंदर एक धीरज रख के बह गया। देखो, ईर्खा करने वाले दी किस्म चेंज हो जाती, रूप चेंज हो जाता, ईर्खा करनी नहीं छड्डदा जी। हुण अंदर ही अंदर एक धीरज रख के बह गया, कोई गल नहीं, जे मैनूं नहीं गुरता गद्दी मिली तो कल नूं मेरे पुत्र मेहरबान कोल आ जाएगी, कदे तो आएगी। पर वह भी उसकी मनसा ते पानी फिर गया सास। समा आया 1595 का सास। धन गुरु अर्जन देव पातशाह के गृह विखे माता गंगा जी की कुख तो गुरु की वडाली विखे धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का पावन प्रकाश होया। तुसीं इत्थे इतिहास बहुत पढ़िया होवेगा, बार बार सुनिया होवेगा सास। संगतां गुरु अर्जन देव पातशाह नूं बधाई देण जा रही हैं, कोई सरोपे लैके जा रहा, कोई भेटावां लैके जा रहा, तो बाबा प्रथी चंद के अंदर ईर्खा खत्म थोड़ी हुई सास। संगतां बधाई देण जा रही हैं तो बाबा प्रथी चंद हुण नवे मनसूबे तैयार कर लगा कि किवें ना किवें किते गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं खत्म किया जाए। देखो, सक्का भरा सासंग नोट करे, मैं तां बेनती शुरुआत की सी, इतिहास केवल पढ़ना ते सुनना नहीं है, ये तो सिक्ख्या की लैनी है, मायने ये रखदा सास। सक्का भरा है प्रथी चंद, 3 हल्ले किते ना गुरु की वडाली वेखी। सब तो पहला दाई नूं भेजिया सास, उस तो बाद एक सपेरे नूं भेजिया, तीजे नंबर ते एक ब्राह्मण नूं भेजिया सास। ये 3 हल्ले जरे नाकामयाब होए, कोई भी हीला वसीला काम नहीं आया सास। इत्थों गुरु अर्जन देव पातशाह हुण गल सुनने वाली जे
परिवार नूं लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं लैके जदों अंमृतसर की धरती ते आए ना शासक, किन्नी क निमरता सी गुरु अर्जन देव पातशाह के अंदर जी। जदों परिवार नूं लैके गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं लैके अंमृतसर की धरती ते पुजदे, सीधे घर नहीं गए, सीधे पहला बाबा प्रथी चंद दे घर जांदे। पता की कहंदे? कहंदे भरावा साडे सिर ते हुण पिता दा छाया नहीं। देखो दुनियावी तौर पर भी एक आम इंसान की तरह विचरे गुरु अर्जन देव पातशाह। कहंदे भरावा हुण घर विच साडे सिर ते पिता दा छाया नहीं है, ते मन्निया जांदा घर विच बड़ा भरा प्यो दे बराबर हुंदा है। ते मैं चाहना ये मालक ने दात दिती है, तू इहदे सिर ते हथ रख। कलेजा फट जांदा शासक। एक भरा की करदा पिया ते दूजा भरा अपने घर नहीं बढ़दा, पहला बाबा प्रथी चंद दे घर जांदा, कहंदा भरावा ये मालक ने दात दिती है, सिर ते हथ रख। उस तो बाद बाबा महादेव कोल जांदे, कहंदे लै भरा मालक ने कृपा की, तू भी इस बच्चे के सिर ते हथ रख। समा अपनी चाले चलता जाता। जदों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह इत्थे अंमृतसर की धरती ते आंदे, ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने शस्त्र और शास्त्र की विद्या जी ड्यूटी है, यह बाबा बुढ़ा जी लाई। मैं आंदे आंदे सोच रहा सा सासंग जीवन ते मैं कह बैठा पंछी झात मारनी, पर यह तो लंबियां कहानियां ने सासंग। बाबा बुढ़ा जी की ड्यूटी लाई शस्त्र और शास्त्र विद्या की। नुकता पकड़न वाला जी, यदा मतलब बाबा बुढ़ा जी शस्त्र विद्या भी जानते हैं तो शास्त्र विद्या भी जानते हैं। ड्यूटी बाबा बुढ़ा जी, नुकता इत्थे नोट करियो। पर साडी बदकिस्मती पता की है, असी केवल बाबा बुढ़ा जी नूं मुंडे देण तक सीमित रख दिता जी। बाबा बुढ़ा जी दे द्वारे जाओ, उत्थे अरदास करो। जिन्हां दे घर संतान नहीं है उन्हां नूं संतान भी नहीं शब्द वरतिया, जिन्हां दे घर मुंडा नहीं हुंदा उन्हां नूं मुंडा मिल जाता। 125 साल की उम्र सासंग नोट करो। मेरे दुख आता जे मैं कल मेरिया अखां चों नीर बगदा पैसे पढ़ते हाँ। असी बाबा बुढ़ा जी केवल इत्थों तक सीमित रखिया जी। हिरदा दुखदा, तुहाडा भी दुखेगा। 125 साल की उम्र चों 113 साल सिक्खी कमा के दसी, उहदे विचों किसी ने जिक्र नहीं किया सास। केवल इत्थों तक सीमित रह गए। बाबा बुढ़ा जी के गुरुद्वारा साहब जाओ, उत्थों संतान की प्राप्ति, संतान भी नहीं शब्द पहला बेनती की, उत्थे मुंडा शब्द वरत्या सास। जो मैं ड्यूटी ला दी बाबा बुढ़ा जी सिर्फ केवल ता केवल किसी ने दसिया ही नहीं कि 113 साल की जी सिक्खी कमाई। नुकता नोट करो ध्यान नाल, 113 साल विचों बाबा बुढ़ा जी के सामने भाई लैना आए, गुरु अंगद देव पातशाह बन के तख्त ते बैठ के बाबा बुढ़ा जी ने इतराज नहीं किया जी। ये नहीं आख्या मैनू क्यों नहीं गुरता गद्दी दी। गुरु अमरदास महाराज अखां ते सामने, गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन देव पातशाह, गुरु हरगोबिंद पातशाह का समा आन लगा जी। मैनू इतिहास विचों पढ़ के दस्यो किते इतराज किया होवे कि मैं इन्ने लंबे समय तो सिक्खी कमा रहा, मैनू क्यों नहीं गुरता गद्दी प्राप्त की। हाँ, एक अरदास जरूर की जी, नोट करो। बाबा बुढ़ा जी ने एक अरदास की कि मालका जे अपने चरणों ना जोड़िया ते आखिरी श्वास तक अपने चरणों ना जोड़ के रखी। और बाबा बुढ़ा जी की अरदास पूरी हुई। तुहानू पता सासंग, जदों बाबा बुढ़ा जी आखिरी श्वास लैन लगे, अरदास की सी, अरदास नूं फल लगा। गुरु हरगोबिंद पातशाह उत्थे पुजे जी। बाबा बुढ़ा जी का सीस गोद विच लिया। आखिरी श्वास बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद पातशाह की गोद विच लिया सासंग। कौन जिक्र करेगा? असी तो बस इको ही गल जोड़ दी बाबा बुढ़ा जी नाल, जिन्हां दे घर मुंडा नहीं, जाओ अरदास कराओ मुंडे हो जाते हैं। बस इत्थों तक सीमित रखिया सासन। बाबा बुढ़ा जी की सेवा ते लुको के ही रख दी सासन। बड़ा हिरदा दुखदा जे, मेरा सुभाव इमोशनल है, अंदर भर जाता सासन। अरदास की, अरदास नूं फल लगा। आखिरी श्वास लिया। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आईयां होईयां संगतां नूं बधाई दी जी। कोल बैठे सिख ने आख्या मालका पूरन गुरसिख का विछोड़ा होया, तुसीं बधाई दे रहे हो। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहते हाँ, जदों जीव संसार ते आंदा आन वेले तां सारिआं नूं बधाइयां मिलदियां ने। भागां वाले वो लोग जिन्हां नूं जान ते बधाइयां मिलन सास। भागां वाले लोग ने वो बाबा बुढ़ा जी वर्गे सास। समा अपनी चाले मैं इत्थे तां रुकिया सा, शस्त्र और शास्त्र विद्या की ड्यूटी लगाई गुरु अर्जन देव पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी। 11 साल की उम्र 1606 का समा आता। तुहानू पता शहादत के कारण जेरे बंदे मैं उस पासे ना जावां। गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत का समा आता। गुरु अर्जन देव पातशाह अमृतसर की धरती तो जो चलन लगते हैं, ध्यान न सुनियो, ध्यान न टुटन दिओ। जो तुरन लगते हैं, सारा परिवार कोल बैठा, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, माता गंगा जी, सारे अलग अलग उपदेश किए। गुरु हरगोबिंद पातशाह की वारी आई। 11 साल की उम्र सास।
मैं कहना सीन अखां के सामने लैके आयो। गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कहन लगे, बेटा मैं जा रहा लाहौर की धरती ते कोशिश करांगा कि शांति के नाल ही मसला किते हल हो जाए। ये गुरु नानक का घर है सासा, इत्थे ते बुरियां नाल भी भला कीता जांदा। एक दिन एक बचन पढ़दा पिया सो भाई साहब भाई वीर सिंह दा जी, हिरदे नूं ठंड पा के जांदा जी। कहंदे दुनिया ते बुरे नाल बुरा करन वाले बड़े ने, पर बुरे नूं माफ करन वाले भी लोग हैं ना, पर बुरे नाल नेकी करन वाला कोई विरला विरला ही सास। भाई साहब भाई वीर सिंह दा बचन कहंदे बुरे नाल सब बुरा करेंदे, माफ करन कई सियाने, बुरे नाल किज नेकी करनी ये गुरु नानक जाने। बुरे नाल नेकी किवें करनी है केवल गुरु नानक जानदा। कहंदे गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कहंदे, बेटा मैं कोशिश करांगा अमन दे नाल मसला हल हो जाए, जे तां भी नहीं होया इस तन ते रज के तसीए झल्लांगा बेटा, पर जे इन्ने तसीए झल्लन दे बावजूद इन्हां जालमां दी आत्मा ना कंबी तो फिर तैनूं कुछ करना पैना। नोट रखियो नुकता सास। गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर जाते हैं, 5 दिन लगातार तसीए दे के जालम शहीद कर दे। इधर गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कह के गए संसासन। भाई चूड़ जी ने एक गल आखी सी, कहते मालका गुरु अर्जन देव पातशाह नूं कहते तुसीं शस्त्र विद्या दे धनी हो, पर तुसीं शस्त्र पहने क्यों नहीं? तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते पहनांगे, पर पहनांगे गुरु हरगोबिंद पातशाह के रूप च। अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। पहनांगे जरूर, पर पहनांगे गुरु हरगोबिंद पातशाह के रूप च। इधर फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह तुहानूं पता सासन फिर गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे ने, तख्त ते विराजमान होंदे ने। 2 तलवारां वधियां, ढाडी नत्था ते अब्दुल जी। इत्थे कुछ इहो जे लिखारियां ने लिख दिता कि बाबा बुढ़ा जी शायद किरपान पानी भुल गए सी। वो शंका जरा निवृत्त कर दिता ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला ने जी। कहते 2 तलवारी वधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। इस शंका निवृत्त किया कि गलती नहीं लगी। ये आप 2 तलवारां बाबा बुढ़ा जी ने पहनियां सास। अकाल तख्त की सिरजना की, मैं पंछी चात जिक्र किया, अकाल तख्त की सिरजना की। फिर समा आया कुछ दोखी लोगों को ये चीज़ां बर्दाश्त ना हुई। चंदू ने फिर चुक भरनी शुरू कर दी। आखिर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले च कैद कर दिता जी। इत्थे अलग अलग विद्वानां दी अलग अलग राय सासन। कोशिश करया करो केवल एक दिन नहीं गुरपुरब मनाना सासन। मेरी एक भावना मैं शुरुआत जिक्र किया सी, जदों भी किसी भी गुरु पातशाह का गुरपुरब आंदा ना, किसी ना किसी लिखारी की लिखी हुई पूरी जीवनी एक बार पढ़नी सासन। हर साल अलग अलग लिखारियां दी जीवनियां पढ़नियां। तुसीं देखियो एक नवीं तो नवीं सिक्ख्या तुहानूं प्राप्त होनी। शुरुआत बचन किया सी जी, ग्वालियर के किले च कैद किए। कुछ लिखारियों ने लिख दिता कि 12 साल कैद, 12 साल सज़ा सुनाई सी, लेकिन बाबा बुढ़ा जी की मेहनत करके उन्हों की घालना करके गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं 2 साल विच रिहा करना पिया सा। 2 साल बाद जो रिहा होए, तुहानूं पता एक कथा बड़ी प्रचलित है, जो रिहा कर लगे तो नाल 52 राजे सन। मर कहते मैं रिहा नहीं होना जब तक इन्होंने 52 राजियां नूं भी नाल रिहा नहीं किया जाता, जल्दी मैनूं चलना पिया। उत्थों जो रिहा किया ना, तो उस जेल का जरा दरोगा सी ना, सुनियो बचन, वो दरोगे दियां अखां भरियां। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहते दरोगिया की गल, विछोड़े करके अखां भरियां ने? दरोगा कहता नहीं मालका, गुरु नालों तो कदे विछोड़ा पैंदा ही नहीं, विछोड़े करके अखां नहीं भरियां। नोट करियो, कहते फिर क्यों अखां भरियां साडे जान ते? कहन लगे मैं तुहानूं पुछना चाहना, ये जिन्हां नूं रिहा कराया तुहाडे लगदे की ने? नोट करियो। उत्थे फिर कवि संतोख सिंह ने एक बड़ा प्यारा वचन लिखिया, कहते लगदे की ने? हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी च वचन कि जिहड़ा शरण आंदा ना, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन वचन। कवि संतोख सिंह जी एक बड़ा प्यारा अते वचन लिखते हैं जी, कहते जो नर आरत कह एक बेरा, श्री हर गोबिंद मैं अब तेरा, क्या उपमा जे इहां बचावन, निकट ना दूत द्यों तै जावन। कहते की उपमा जे इत्थे बचा लिया, जिहड़ा एक बार कहते हे गुरु हरगोबिंद पातशाह मैं तेरा। केवल गुरु हरगोबिंद पातशाह नहीं, इत्थे सारे एक बार जुड़ के कह दिओ हे गुरु नानक, जे चंगे आ तां भी तेरियां, जे मंदे आ तां भी तेरियां, पर अपने चरणों तो दूर ना करी। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहते ओदी इस लोक विच तां रखिया की करनी, ओदी परलोक विच भी आपां रखिया करांगे। नोट करियो, इत्थों गुरु हरगोबिंद पातशाह रिहा हुंदे ने, दिल्ली पुजदे ने जी। दिल्ली जहांगीर नाल नेड़ता हुंदी है। इत्थे सारियां गल्लां दा पता लगदा। जहांगीर ने चंदू नूं फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह दे हवाले कर दिता।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਧ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਸਾਧ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਾਧ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਪੁੰਜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੁੰਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸਾਸਨ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੰਜਾ ਕੜਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਸਨ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੜਛਾ ਹੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਨੇ ਸਾਸਨ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਸਨ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਸਨ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1628 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1635 ਤੱਕ 4 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਸਨ। ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1635 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1644 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਲੈਣੇ ਸਾਥ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ, 12:15 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਾਸਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਲਾ ਲਓ ਸਾਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਥ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਸਨ, ਕਿਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਸਾਸਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਸਨ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਸਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1-1 ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਸਾਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਸਾਸਾਂ, 1 ਮਿੰਟ।
तेरे हथ विच शराब का गिलास नहीं जचदा। मैं 3-4 स्टेजां ते गल की, तेनों इन्ना सोहना रूप दिता, तेनों ये नहीं जचदा शराब का गिलास। उत्थे संगत विचों एक सज्जन उठिया जी, वो पी पी करदा बाहर गया, तो उत्थों के सैकटरी नूं पता की कहंदा, कहंदा भाई साहब नूं किहने दस्सिया कल मैं ब्याह च शराब पींदा पिया सी। वो तुहाडा भला हो जे, मैनू मेरी जाने कमानी, मैनू पता नहीं कदों तो पीता कदों नहीं पीता, पर आप अपने वाल गल खिंच गया। क्योंकि जिहो जी सोच होंदी है, बंदा उहो जी गल अपने वाल खिंच जाता। मैनू पता ही कोई नहीं की होया कि जरनल गल कीती कि एक सिख नूं ये चीज़ां मैच ही नहीं करदियां। तुसीं देखो, दस्तार बन्नी होवे, सोहना दाड़ा होवे, ते हत्थ 'च शराब का गिलास जचदा? ये जचदा ही नहीं। गौर करके देखियो, उही गल कर लगा, ये गुरु घर दी गोलक दी माया, यदि सही वरतों हो जाए कमेटी सत्कारयोग बन जाती। साथ गुरु अर्जन देव पातशाह का मैं इशारा करा, जदों शहादत होंदी है, पता 2 शर्तां रखियां जांदियां। पहली शर्त सी, तुसी दुर्गोती खुसरो की जी मदद की है, तुहानू 2 लाख रुपया जुर्माना लाया जाता। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगा, पर एक गुरु घर की गोलक की माया की नजायज वरतों नहीं होने देंगा। साथ 2 लाख रुपया जुर्माना उस मौके लाया गुरु अर्जन देव पातशाह नूं कि तुहानू तुहाडी जान बख्शी जा सकती है, तुसीं 2 लाख रुपया गुरु की गोलक तो सरकारी खजाने में जमा कराओ। साडे कोल सेध है साथ संगत, साडे कोल इतिहास च बातां ने। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ना, एक किरती सिखां दा एक एक पैसा इसनूं अजाई नहीं जान देना। दूजे नंबर ते साथ एक तो हो गया गुरु घर की एक गोलक की माया की सही वरतों। दूजे नंबर ते जिहड़े साडे बुलारे ने, जदों उन्हां नाल वितकरा हुंदा ना, साथ संग गौर करके देखो, उन्हां नाल वितकरा हुंदा ना, मैं खुशी मुबारक देंगा समुची कमेटी नूं, एक बंदे नूं, प्रधान साहब तो लैके समुची कमेटी नूं। जदों दी होंद विच आई है, हर बार एक नवां चेहरा सामने आंदा पिया। साथ ये नहीं कि पक्के बंदे फिक्स कर दे कि इहो कीर्तन करनगे ते इहो कथा करनगे। ये बदनामी के कारण एक गुरु घर की गोलक की माया की सही वरतों हो जाए, कमेटी शाबाश के पात्र बन जाती है। अगर ये माया की नजायज वरतों हो तो बदनामी का कारण बन जाती है। ते बुलारे अगर किसी ना वितकरा ना किया जाए तो भी वह सलांघा योग कदम होंदा। सासंग समा मेरा हो गया, इस करके मैं कमेटी नूं बधाई दिना जिन्हां ने इहो जे कारज उलीके ने। साध संगत सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रखते पे ने। और सचमुच मैं वीर रणजीत सिंह ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि नवें शहर का तुसीं जिहड़ा हिसाब किताब है WhatsApp ते पा दिंदे हो, ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी का किवें करदे हो? क्योंकि मैनूं पता नहीं है। भाई साहब कहते 31 मार्च तक कोई भी आके चैक कर सकदा किन्नी आमदनी है, किन्ना खर्चा ते किन्ना बकाया। स्वाद आ जाता ना सेवा करने का। साथ जदों अंदर बेईमानी कोई नहीं है तो फिर हिसाब दसदियां की डर लगता। अंदर बेईमानी होगी बंदे तो उही डरेगा जी। जदे अंदर चोर नहीं है तो उन्होंने कादी डरन की लोड़ है। सो कोटानकोट शुक्र है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, जो आप सिर ते हाथ रख के सेवा लै लेंदे ने जी। आप जी समूह संगतां दा भी दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद, जिन्हां ने बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु दीआं बातां सरवण कीतियां ने। गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समुची कमेटी का धन्नवाद। नाल दे नाल मेरे तो बाद बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब हरजिंदर सिंह अते नाल दे कीर्तनी जत्थे पहुंचे ने, उन्हां दा भी आपां प्यार सत्कार नाल कीर्तन सरवण करना जी। सो जल्दी ना बोलदे बेअंत भुल्लां हो गईयां होवणगीਆਂ। उम्मीद है आप जी बख्श देवोगे। दोबारा आप जी समूह संगतां नूं लख लख बधाइयां। देहो सज्जन आसीसड़ियां, ज्यों होवै साहिब सुमेल। गज के फतेह बुला दो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की